सम सिस्टम्स शुड बी देयर। हम बहुत सारी बातें करते हैं ना, स्ट्रक्चर की, प्लानिंग्स की, सिस्टम्स की, एंड इनफैक्ट उसके आगे जाके होता है वो कॉस्ट कटिंग। क्योंकि कॉस्ट कटिंग तभी हो जाता है जब भी आप सिस्टम से काम करते हो, स्ट्रक्चर से काम करते हो, और तब जाके शायद वो पॉसिबिलिटीज ज़्यादा क्रिएट होती है। Regarding the export business, the main funda for this business is like the secret thing in this business is like how you can reduce your costing in every step of the procedure. क्योंकि सप्लाई चेन की अगर बातें करूँ मैं, लाइक फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड अगर मैं बातें करूँ, why I can tell you like this, how we can reduce the cost and why it is important to reduce the cost, because like at the same time I'm exporter and I'm importer also. So I have checked like all the points, like what are the costings exporter should bear and what are the costings importer should pay in this part. So if we could know about all the costings in the supply chain, might be we can reduce our costings and might be we can increase the profitability in the business also. So yes, let's learn about that. Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach, and yes, we are here to discuss with you related to export business, because yes, business is a long term process. We can't do that it's a one night game और आज लर्न किया तो कल आप एक्सपोर्टर बन गए. Yes, you can definitely, but still things will take time to get that level in the business, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत कुछ काम करने की जरूरत है और वो ट्रायल एरर्स एक्सपीरियंस आपको देते जाएगी और शायद तब जाके कुछ तो बात बनेगी. इतने सारे लोग जो हम बिजनेस में देखते हैं, उन्होंने क्या किया है, फिर उन्होंने शुरुआत तो ऐसे स्क्रैच ही हुई है, बहुत जीरो से स्टार्ट किया है. उन्होंने भी बहुत सारे, वो बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार उठे हैं, बहुत बार उनको लगा भी है, लॉसेस भी उन्होंने किए हैं, प्रॉफिट्स भी उन्होंने कमाए हैं, लेकिन स्टिल आई विल से लाइक दे हैव एंजॉयड दिस जर्नी. और ये जर्नी एक्सपीरियंस के साथ ही जी जाती है. अभी आपके केस में अगर मैं कहूँगी कि अगर आपको एक्सपीरियंस मतलब वो मिलेगा करोगे और तब जाके आप ये सारा करोगे, तो उसके लिए इट विल टेक टाइम. So why not to learn from the others experiences कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं. So बस the quick tip for you in this video is how to reduce your costings and how to do the cost cutting in the business. So understand whole A to Z part of the business. Like understand every steps of the business. कि like अगर मैं product procure करती हूँ, whether it is engineering, whether it is handicraft, whether it is textile, so from the procurement, what are the cost involved in that part? Like for the packaging, what is the costing? How I can reduce in that case? After that procurement, okay, might be the transport, then the loading, then the vessel upload, like vessel, container. So ये सारी बात आई. So in this process, what are the heads in that process? What are the major costing involved in that process? So उसको पहले वर्कआउट करो. फिर उसके बाद ओके चलो मैंने BL भी मतलब बनाया, लोडिंग भी हो गया, वेसल भी चली गई. फिर उसके बाद इम्पोर्टर, मतलब अभी यहाँ पे जो भी आपका डेस्टिनेशन पोर्ट है वहाँ पे कार्गो आएगा. So might be you are dealing on the FOB terms, might be you are dealing on the CIF term, but still I will suggest you all that please you should know about the costing at the importer end also. Then might be you can calculate the landing cost for your product, and then you can come to know like whether there really the profitability is there, whether like सच में वो importer को कितना पड़ रहा है, ताकि और अगर सच में हमें लॉन्ग टर्म में बिजनेस लेके जाना है तो क्यों ना हम कुछ कर सकते हैं केस में. सो ऐसी बहुत सारी बातें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारी फायदेशीर होती है. सो आपके लिए मैं कहूँगी कि चलो हमने एक्सपोर्टर तक का पूरा खर्चा निकाला, उसमें मेजर हेड्स निकाले और उसमें मैं कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकती हूँ ये भी देखा. सेम साइमल्टेनियसली आपको इम्पोर्टर के और पे लाइक वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस का कितना लगता है, ड्यूटीज़ के चार्जेस कितने हैं, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के कितने हैं, तो ये भी रफली अगर आइडिया लेते हो तो भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं. सो इस केस में हमने क्या देखा, एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, हाउ यू कैन सेव द कॉस्ट. ओके, करंटली अगर मैं टुडे के बारे में बताऊँ तो यस, वी जस्ट केम फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स. हमारे आज मीटिंग थी उनके साथ और व्हाट वी हैव डन देयर, लाइक हमने ये वर्कआउट किया कि बीइंग अ इम्पोर्टर, बीइंग अ एक्सपोर्टर, हाउ आई कैन रिड्यूस द कॉस्टिंग्स इन टर्म्स ऑफ ऑल द प्रोसीजर इन दैट पार्ट. सो होता है ना कि लाइक सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस में. इन एवरी बिजनेस आई विल से इट इज़ नॉट अबाउट द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड इट इज़ नॉट अबाउट द एग्री, इंजीनियरिंग, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो उसको बनाया जाएगा, फिर उसको यहाँ से वहाँ तक लेके जाएगा, फिर यहाँ से वहाँ तक उठाया जाएगा एंड अप टू द एंड कस्टमर और अप टू द कंज्यूमर वहाँ तक भेजा जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन का जो साइकिल है वो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा.
सो लाइक अगर मैं क्विक टिप्स के बारे में बताऊँ कि आज की जो मीटिंग्स में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए कि हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्टिंग एक्चुअली. सो इन टर्म्स लाइक फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो कि अगर मैंने 1 बिल ऑफ लैडिंग बनाया है 1 कंटेनर, आई हैव एक्सपोर्टेड 1 कंटेनर, और 1 कंटेनर जाने के लिए मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़े. द सेम थिंग्स अप्लाई फॉर द एवरी कंटेनर, एवरी शिपमेंट. सो मैंने वो सारा किया. अभी 1 कंटेनर मैंने भेजा तो फिर उसके लिए लाइक 1 बिल ऑफ लैडिंग हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हुए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हुए, ऐसे बहुत सारी बातें. लेकिन एट द सेम टाइम इफ आई विल लोड 2 कंटेनर्स, 3 कंटेनर्स, 4 कंटेनर्स और 1 बिल ऑफ लैडिंग, सो यस यू कैन इमेजिन द कॉस्ट कटिंग विल बी देयर. लाइक यस बिल ऑफ लैडिंग पहले हमें 1 कंटेनर के लिए 1 बिल ऑफ लैडिंग के लिए उसका चार्ज दिया था. लेकिन अगर आप 1 BL पे 4 कंटेनर्स लोड करते हो, इसका मतलब तब भी आप 1 बिल ऑफ लैडिंग का ही चार्ज दे रहे हो. इन शॉर्ट लाइक 1 एंड इंटू 4 ये मैंने सेव किया है. सो बहुत सारे लोगों को एक्सपोर्ट क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल जाता है स्टार्टअप को. यस आई विल से इट विल नो, क्योंकि आप पहले तो शुरुआत ही छोटे छोटे चीज़ों से करोगे. लेकिन यस डेफिनेटली व्हेन द गेम विल चेंज इन दिस मार्केट, जब भी आप इस वॉल्यूम के साथ चलोगे, जब भी ऐसे बल्क के साथ चलोगे, एंड दिस इज जस्ट 1 टिप आई एम गिविंग. सो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, हाउ यू कैन रिड्यूस योर कॉस्टिंग, हाउ यू कैन गेन द प्रॉफिट इन द बिजनेस. बट यस यू नीड टू वर्क ऑन दैट पार्ट. यू नीड टू हैव द क्लैरिटी फॉर द प्रोसीजर. और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अरे हाँ मुझे सब कुछ पता है, मुझे ये भी पता है, आई हैव IEC, आई हैव RCMC, ये वो सारी बातें. लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अरे एक्सपोर्ट बिजनेस इतना डीपर है कि यस लिटरली आई एम ऑल्सो लर्निंग द थिंग्स. और ये लर्निंग नेवर एंडिंग है. ये पूरा मतलब जब तक हम है तब तक चलने वाला है. क्योंकि आज फॉर एग्जांपल दुबई को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो दुबई की बहुत सारी बातें नए तरीके से पता चली. कल शायद मैं यूरोप जाने वाली हूँ तो ओके यूरोप की बातें पता चलेगी. अभी उसकी प्रोसीजर, सिस्टम, पार्ट्स, हाउ द पीपल आर रनिंग द बिजनेस, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ऐसे बहुत सारी बातें पता चलने वाली है. सो व्हाई यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ दैट यू नो एवरीथिंग इन द एक्सपोर्ट बिजनेस? इट विल नॉट गोइंग टू हैपन. जस्ट लर्न करो, कंटिन्यूसली लर्निंग में जाओ, तब जाके आप बहुत कुछ इंप्रूव कर पाओगे बिजनेस के मामले में. एंड यस सक्सेस विल डेफिनेटली फॉलो. सो यस विद दिस आई विल जस्ट कंक्लूड द वीडियो. लाइक डीपर जाओ, क्लैरिटी लो. बहुत सारे ऐसे कॉस्ट कटिंग के हेड से लाइक 1 जो मैंने BL के बारे में बताया एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए. सेम थिंग अगर इंपोर्ट के पास में देखते हो तो इंपोर्ट के लिए भी अगर 4 कंटेनर एक ही डॉक्यूमेंट पे आ रहे हैं तो कस्टम क्लियरेंस की जो कॉस्ट है वो भी 1 बिल ऑफ लैडिंग के लिए लगेगी. सो इसका मतलब सेविंग एट द बोथ एंड, एंड यू कैन यस लिटरली सेव द लॉट ऑफ मनी इन दैट. सो कॉस्ट कटिंग के लिए एक हेड तो आपको बताया दिया, पता भी चला होगा. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो. सो यस अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो, सच में सीरियस हो बिजनेस को करने के लिए, यस ग्लोबल फॉर्चून इज विथ यू, KD Sushma is with you, and yes we are there to help you to create your export journey, start your export journey, and yes to make you entrepreneur, exporter, because I am on a mission to create 10,000 exporters by 2025. So let's start the journey. Be joined with us, take action, start your journey.